Friends, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor. I hope you all are doing well at your home, and I also hope that soon we will recover this COVID 19 situation. So, don't lose your studies because it's your board. So, students, as we were doing our chapter acid, base, and salt, and we have completed acid and base, now we are going to start the topic salt. Before starting salt, we will discuss some points that are important for board purpose. So let's start. First is testing of hydrogen gas. Means sometimes you are asked that prove hydrogen gas is liberated in this reaction. So how can you prove that? For any type of reaction in which hydrogen is liberated, you can prove like this. See this diagram first. The diagram shows that we have taken a glass tube in which we have taken water and potassium, right? When water is what? H2O is water, right? And potassium is K. When both of these react with each other, what they form? KOH, that is potassium hydroxide, and hydrogen gas is liberated in this reaction, right? So when hydrogen is liberated in this reaction, how will we prove it that hydrogen is formed in this reaction? We will bring a matchstick, a burning matchstick near this glass beaker, and when hydrogen comes in contact with this matchstick, then a pop sound will be arise and the matchstick will goes off, right? Means जैसे ही आप इस मैच स्टिक को यहाँ बीकर सॉरी टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ मैच स्टिक क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी. Or this pop sound indicates that hydrogen gas is evolved or formed in this reaction. Clear? So now see what is given here. When we react any metal with acid, the reaction gives the corresponding salt and produces hydrogen gas. Right? We have already studied this point in the properties of acid, that when an acid reacts with any metal, it forms hydrogen gas. Now I hope you are clear about that. Prove hydrogen gas in any reaction. How can you prove that? We will bring a matchstick, burning matchstick nearby the gas, and if the matchstick goes off with the pop sound, it indicates that hydrogen is produced, right? Next is historical monuments and acid rain. So students, आपने ऑलरेडी सुना होगा कि जो हमारा ताजमहल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे येलोइश पड़ता जा रहा है. मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर है, सॉरी उसकी जो मार्बल है वो क्या होती जा रही है? डैमेज होती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन. ठीक है. व्हाट इज़ एसिड रेन नाउ? तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, व्हेन वी बर्न देम, फॉसिल फ्यूल्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन योर 9th क्लास. सो जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उनसे कौन सी गैसेस निकलती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. व्हेन दीज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सॉरी नॉन मेटल्स हैं ये, तो जब इनके ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्शन करते हैं तो व्हाट दे फॉर्म एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. क्लियर? तो सी हियर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. यही मैंने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, एंड व्हेन दीज ऑक्साइड्स फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर, यानी जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. क्लियर? नाउ अब जब ये एसिड बन गए हैं तो यही एसिड जो है जब मार्बल पर, मार्बल क्या है आपका? मार्बल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट. तो जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? एक ऑक्साइड की लेयर जो है वो मार्बल पर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं. इन केस ऑफ आयरन, आपने आयरन पे भी देखा होगा एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, और उस आयरन को कोरोडेड आयरन कहते हैं. क्लियर? इसी तरीके से एक लेयर किसके ऊपर बन जाती है? मार्बल के ऊपर बन जाती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज use of reaction between acid and metal carbonate and metal bicarbonate. We have already studied this equation too in our properties of acid, but what is the use of that reaction?
वी विल सी हियर। तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर का तो सुना होगा कि वो किस काम में आता है, आग को बुझाने के काम में आता है। और उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो हम उसमें यूज़ क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एसिड होता है और एक चैम्बर में क्या होता है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो जब एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है। तो इफ़ समवन आस्क यू द वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो देन हाउ विल यू एक्सप्लेन, यू विल एक्सप्लेन लाइक के acid and metal carbonate or bicarbonate are kept in separate chambers in fire extinguisher, and when it is needed or when on emergency they are open to react with each other and the carbon dioxide gas is formed and स्प्रेड। क्लियर, यानी स्प्रे कर दी जाती है जिससे क्या होता है, वो बर्निंग जो आग होती है वो बुझ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने का मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। नाउ सी व्हाट इज दिस, व्हेन electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide and this process is called chloralkali process. Now see this diagram. In this diagram we will discuss that what happens here. तो क्या किया है हमने पढ़ा अभी के NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। तो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस ब्राइन, यानी जब हम ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH एंड व्हाट फॉर्म्ड, क्लोरीन गैस एंड व्हाट, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे क्लोर एल्केलाई प्रोसेस में। एक बनता है NaOH, एक बनती है क्लोरीन गैस और एक बनती है हाइड्रोजन गैस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज कि कौन सी गैस या कौन सा सॉल्ट कहाँ बनता है। यानी क्लोरीन गैस बनती है एनोड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्लोरीन गैस, वेयर द क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड इन क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। तो कहाँ बनती है, एट एनोड बनती है, जबकि कैथोड पे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड while chlorine gas is formed at anode. I hope you are clear about this topic. Now see की, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ की क्या करती है, आपकी की के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सी वन स्मॉल पॉइंट बट थिंग टू रिमेंबर, थिंक क्लियर। व्हाट मीन्स कि सभी एसिड जो है वो नॉर्मली क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं। हमने पढ़ा है कि सभी एसिड्स जो हैं वो क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब व्हेन वी डिजॉल्व देम इन वाटर। क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी H होगा, जिस भी कंपाउंड में H होगा कि वो एसिड होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्लियर है। सी वन एग्जाम्पल, लाइक वी हैव एसिटिक एसिड और विनेगर, यू कैन से CH3COOH। आप पढ़े हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ दिस, विनेगर, और यू कैन से एसिटिक एसिड। और अगर मैं बात करूँ C6H12O6, व्हाट इज़ दिस इज़ ग्लूकोज। तो दोनों में ही H है, बट ये CH3COOH क्या है, ये एसिड है, बट दिस ग्लूकोज इज़ नॉट अ एसिड। क्लियर। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ ए कंपाउंड हैज़ H then or hydrogen atom then it is called acid. It is not necessary. Only when we will call them acid when they produce H ion in its aqueous solution. यानी हम किसी को acid कब कहेंगे, जब वो अपने aqueous solution में H ion produce करेंगे। Clear है। Now next is uses of chlorine gas and uses of hydrogen gas. Students, you have already studied about these uses, but still let's revise them.
तो यूजेस ऑफ क्लोरीन क्या है, वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ा होगा आपने, क्लोरीनेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर को क्लीन करने में। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो पॉलीथीन होती है आपकी, सीएफसीज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर एसीज में जो गैसेस होती हैं उनको सीएफसीज कहा जाता है। पेस्टिसाइड बनाने में क्लोरीन का यूज़ होता है। और डिसइंफेक्टेंट्स यानी जर्म्स को किल करने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस के यूजेस आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अमोनिया NH3 ये क्या है, अमोनिया को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है और फिर अमोनिया का फर्दर यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कैसे करते हैं? तो जो हमने क्लोर एल्केलाई प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिली थी, उसी से हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। Cl2 plus H2 is equal to 2HCl. Clear? See here. Here is the equation. CH2 जो हमें क्लोर एल्केलाई प्रोसेस से हाइड्रोजन मिली, ये क्लोरीन गैस है और इन्हीं से रिएक्शन करके क्या बना, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। ठीक है, HCl के यूज़ देख लीजिए इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स, PVC, कॉस्मेटिक्स, अमोनियम क्लोराइड एंड ऑल्सो फॉर क्लीनिंग स्टील्स। ये एक इंपॉर्टेंट यूज़ है कि स्टील्स को क्लीन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज CaOCl2। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला, केमिकल नेम, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है ये CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर है, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कैसा होता है, वाइट, येलोइश वाइट पाउडर होता है। ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता है, क्लोरीन और स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन से। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, स्लेक्ड लाइम है, और Cl2 क्लोरीन गैस की रिएक्शन से क्या बना, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अगर आपसे केमिकल नेम की बात पूछी जाए कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो हियर इट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के हिसाब से, इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से। तो व्हाट इज़ केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर नाउ। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस। ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आपको। सी फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, कलर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, जो पेपर्स बनाए जाते हैं तो वो किससे बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं। तो उस वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, यानी लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी के अलावा क्लोरोफॉर्म का मैन्युफैक्चर, यानी क्लोरोफॉर्म फॉर्म करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। It is also an important salt, NaHCO3. What is this? बेकिंग सोडा। आपने अपनी किचन में इसका यूज़ और नाम सुना भी होगा। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब H लग जाता है तो हम उसको बाई भी बुला सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर नाउ। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एल्केलाइन। इसका एक्वस सॉल्यूशन एल्केलाइन होता है, इसीलिए हम इसे एज ए एंटासिड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंटासिड यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि वी कैन यूज़ इट व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। क्लियर, आपने कई बार सुना होगा कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो एसिडिटी अगर किसी को होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बेकिंग सोडा विद वाटर आप ले सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एल्केलाइन होता है। और अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, यानी एसिड की एक्सेस ज़्यादा हो रही है, एक्सेस ऑफ एसिड इज हाई, देन व्हाट विल हैपन, दिस एल्केलाइन सॉल्यूशन of NaHCO3 will neutralize the excess of acid and it will relieve the patient. क्लियर, ये क्या होगा, ये एक्सेस जो एसिड की हो रही है उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ क्या किया जाता है, एज ए एंटासिड किया जाता है। क्लियर है। नाउ
ऑन हीटिंग द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एज फॉलोज, तो अगर हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, मीन्स हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है और वाटर मिलता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जब हम, आपने देखा होगा जब कोई केक बनाता है या ब्रेड बनाता है तो उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो वो बेकिंग सोडा का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम उसे बेक करते हैं, अभी देखा आपने जब हमने इसे गर्म किया तो हमें क्या मिला, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट मिला, उसके अलावा CO2 यानी ये CO2 क्या काम करती है, उस केक को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना देती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि वाई डू वी यूज़ बेकिंग सोडा इन मेकिंग केक और ब्रेड। क्लियर, तो क्या करता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या करता है कि इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द केक और ब्रेड स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। क्लियर, now next is used to manufacture baking powder, it is also used in fire extinguisher। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कि फायर एक्सटिंग्विशर में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा अभी हमने पढ़ा है Na2CO3, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा यानी क्रिस्टलाइन sodium carbonate is called what, washing soda। the heating of baking soda produces sodium carbonate। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा है कि when we heat sodium bicarbonate we get what, sodium carbonate, that is what, washing soda। उसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा। क्लियर है, ये भी कैसा है, एक बेसिक सॉल्ट है और इसके नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, लॉन्ड्रीज में इसका यूज़ होता है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज़ होता है, और इसके अलावा ग्लास, सोप पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ इसके अलावा कहाँ होता है, एक्सप्लोजिव आइटम्स लाइक बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज plaster of Paris। plaster of Paris is what, POP means CaSO4 यानी hydrated calcium sulfate is called what, POP। many times you have heard the name in your home, right। तो POP का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सॉरी दिस इज़ द फॉर्मूला 1/2H2O, दिस इज़ 1/2H2O है। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाफ water unit is attached with CaSO4। I hope you are clear, half water unit is attached with CaSO4, that is called what, plaster of Paris। Clear, and what is this CaSO4.2H2O, this is gypsum, this is what, gypsum। तो when we heat gypsum on high temperature we get POP and 3/2 units of water। यानी जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, POP मिलता है, और उसके साथ में उससे वाटर कुछ क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है, नाउ यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक यूज़ तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर्स यूज़ POP फॉर फिक्सिंग द बोन्स ऑन इट्स अप्रोप्रिएट पोजिशन। क्लियर, यानी प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है जब कोई आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, बोन, तो उस पर प्लास्टर जो किया जाता है वो यही प्लास्टर होता है। क्लियर, नेक्स्ट इज़ फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर टॉयज़ मटेरियल्स, यानी टॉयज़ बनाने के लिए या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी POP का यूज़ किया जाता है। डेकोरेशन के पर्पज़ से भी POP का यूज़ किया जाता है, और लेबोरेटरीज़ में एयर टाइट करने के लिए भी POP का यूज़ किया जाता है। क्लियर, the last but not the least topic is water of crystallization। so water of crystallization is nothing just the unit of waters attached in a formula unit, right। means कि जैसे अभी आपने जिप्सम का फॉर्मूला पढ़ा CaSO4.2H2O, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट में हाउ मैनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, तो यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड इन दिस फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या कर, इसके पास क्या है, टू क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर है, सिमिलरली सी हियर व्हाट इज दिस CuSO4.5H2O, दिस इज ब्लू विट्रॉल, this is blue vitriol, and how many water of crystallization are here with this, so it has 5 water of crystallization।
क्लियर? तो एक फॉर्मूला यूनिट के साथ यहाँ देख सकते हैं द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी एक फॉर्मूला यूनिट के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाता है, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. So students, now we have completed our chapter, and this is one of the most important chapter in which we get many questions in our board. So be serious. If you have any doubt in this chapter, then you can call us or you can raise your hand in your attendance group. So thank you.